بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے سلام۔ ہجرت میں پیارے رسول کا ساتھ۔ پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سالوں تک مکہ والوں کو اللہ کا پیغام دیتے رہے، دین کی باتیں سمجھاتے رہے اور دین کی دعوت دیتے رہے، قرآن پڑھ کر سناتے رہے اور اسلام کی طرف بلاتے رہے، مگر کچھ کٹر قریشیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابھی تک مکہ میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مکہ کے قریش لوگوں نے ان پر اس قدر ظلم کرنا اور ان کو ستانا اس قدر بڑھ گیا تو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مکہ سے مدینہ کی اور ہجرت کر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم مسلمانوں کو سنا دیا۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ حکم سنا تو ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے۔ مکہ سے مدینہ تقریباً 150 میل کی دوری پر تھا۔ اس زمانے میں لوگ پیدل یا تو اونٹوں پر مکہ سے مدینہ جایا کرتے تھے۔ راستہ طے کرنے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 اونٹنی کو مکہ سے مدینہ جانے کے لیے الگ کر لی اور انہیں خوب اچھی طرح کھلانے پلانے لگے تاکہ وہ طاقتور اور تگڑی ہو جائے۔ دھیرے دھیرے سبھی مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دل ہی دل میں سوچتے کہ میں پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر جاؤں گا تو سفر میں ان کی کچھ خدمتیں کا موقع مجھ کو مل جائے گا، اور اللہ سے یہی دعا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ اسی سوچ میں رہتے۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے کئی مہینے گزر گئے۔ تقریباً سارے مسلمان مکہ سے نکل کر مدینہ کی اور ہجرت پر چلے گئے۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی باتیں مکہ کے سرداروں کو معلوم ہوئی، اب وہ سوچنے لگے کہ اگر محمد بن عبداللہ مکہ سے مدینہ چلا گیا تو وہاں کے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے اور ان کی طاقت کافی بڑھ جائے گی، اس لیے محمد بن عبداللہ کو قتل کر ڈالنا چاہیے۔ تو سبھی قریش کے لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے ایک دن طے کر لیا اور مشورہ کیا کہ ایک رات ہم محمد بن عبداللہ کے گھر کو گھیرے رہیں گے اور صبح جب محمد بن عبداللہ گھر سے نکلیں گے تو اسی وقت ان کا قتل کر دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ ایک رات جب سبھی قریشیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تو اسی رات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر ملے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، میرے لیے بھی ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میرے لیے بھی حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں تمہارے لیے بھی حکم آیا ہے۔ اتنا سن کر حضرت ابو بکر صدیق خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں نے اسی دین کے لیے 4 اونٹنی کو الگ کر لیا تھا اور اب یہ چاروں خوب کھا پی کر طاقتور ہو گئی ہیں، انہی پر ہم ہجرت پر چلیں گے۔ اس کے بعد فوراً اپنی بڑی بیٹی حضرت آسمہ، اپنے بیٹے عبداللہ اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ سامان ٹھیک ٹھاک کر دیں۔ حضرت ابو بکر کے گھر یہ تینوں ایمان لے آئے تھے اور دل و جان سے اللہ کے رسول کے لیے قربانیاں دینے کو تیار رہتے۔ رات کو قریش کے لوگوں نے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا
था। लेकिन अल्लाह के हुक्म से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले तो दुश्मनों ने आपको ना देखा। घर से निकलकर सीधे अबू बकर के घर पहुंचे और सारा सामान ठीक ठाक किया। हजरत आसमा ने कई दिनों का खाना तैयार करके अच्छी तरह बांध दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु रात को ही निकल गए। मक्का के करीब एक गार गुफा यानी गुफा है। इस गुफा का नाम गारे सौर है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पहले गुफा के अंदर गए, गार को अंदर से साफ कर दिया। जब उन्हें यह इत्मीनान हो गया कि गुफा में अब कोई कीड़ा वगैरह नहीं है तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए और अपने प्यारे साथी हजरत अबू बकर के साथ गुफा में ठहर गए। जब सुबह हुई और मक्का वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो समझ गए कि बचकर निकल गए। कुरैशियों ने उसी वक्त ऐलान करवा दिया कि जो शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को गिरफ्तार करके या उनका कटा सर लाएगा तो उस शख्स को 100 लाल ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। उस वक्त लाल ऊंट बहुत कीमती होते थे। इनाम के लालच में दुश्मन आपको खोजने निकल पड़े। मदीना के रास्ते पर भी गए और इधर उधर भी ढूंढना शुरू कर दिया। एक बार कुछ दुश्मन गारे सौर के सामने आकर खड़े हो गए और इधर उधर देखना शुरू किया। अंदर जब हजरत अबू बकर ने उन्हें देखा तो आपने घबरा कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वह थोड़ा झुक कर अगर देखें हमें तो देख लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। दुश्मन उसी जगह खड़े खड़े इधर से उधर देखते रहे और वापस चले गए। गारे सौर में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और रात उसी में रुके रहे। इन 3 दिनों में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हों के गुलाम आमिर बिन फुहैरा और प्यारी बेटी आसमा दोनों भेड़ बकरियां लेकर चराने के बहाने आते और गारे सौर के पास आकर खाना पानी नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों को दे जाते और वापस लौटते वक्त अपने कदमों के निशान मिटाते हुए जाते ताकि दुश्मन के को कोई शक ना हो कि अभी अभी इस रास्ते से कोई गुजरा है। अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह को अबू बकर रजी अल्लाह अन्हों ने निगरानी पर लगा रखा था कि वह मक्का वालों के बीच जाकर बैठे, उनकी बातें सुने और वे लोग आपस में जो मशवरा करे उसे आकर बताया करे। और अब्दुल्ला हर दिन आकर आपको मक्का की खबरें बताते कि मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान किया है। गारे सौर में 3 दिनों तक छिपे रहने के बाद चौथे दिन मदीना की तरफ जाना था। हजरत अबू बकर ने बेटी, बेटा और गुलाम से कहा कि सारा सामान और ऊँटनियाँ लेकर आओ। सारा सामान आ जाने के बाद एक ऊँटनी पर नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और दूसरी पर हजरत अबू बकर सवार हुए और गुलाम को मदीना का रास्ता बताने के लिए रखा। वह रास्ता बताता हुआ आगे आगे चलता। रास्ते में अबू बकर रजी अल्लाह अन्हों को सिर्फ यही फिक्र रहती कि नबी को कहीं कोई तकलीफ ना हो, उन्हें कहीं भूख ना लग जाए तो फौरन खाना देते, प्यास लगती तो पानी देते, धूप होती तो सर पर कपड़ा तान देते। जब धूप तेज हो जाती तो कहीं ठहर कर आराम करने की जगह खोजने लग जाते, फिर आपकी आराम का इंतज़ाम करते। रास्ते में एक दिन सोचा कि कहीं दूध मिलता तो प्यारे नबी को पिलाता। यह सोचकर एक जगह आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराया और खुद दूध के लिए इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगे। पास ही एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। फौरन उसके पास
पास गए, उससे दूध लिया, उसे कपड़े से छुपा कर ले आए और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर नबी को पिलाया। फिर शाम हुई, वहाँ से आगे बढ़े। मक्का में सुराका नाम का एक जवान था और वह बहुत बहादुर होने के साथ लालची भी था। उसने मक्का के सरदारों का ऐलान सुना कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को पकड़ कर लाएगा या उसका कटा सर लाएगा तो उसे 100 सुर्ख ऊंट इनाम में मिलेंगे। इनाम के लालच में आकर उसने अपना तीर कमान लिया, तलवार कमर में लटकाई, हाथ में नेजा लिया, घोड़े पर सवार हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजने निकल गया। ढूंढते ढूंढते उसने आपको देख लिया। घोड़ा दौड़ा कर नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उसे देखा तो फौरन समझ गए कि यह दुश्मन है। नबी से बोले, हुजूर दुश्मन आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सुना, आप उस वक्त कुरान की तिलावत कर रहे थे। सुराका ने नबी पर हमला करना चाहा, तभी उसके घोड़े की पैर रेत में धंस गई। वह घोड़े से उतरा और लगाम पकड़कर घोड़ा को खींचा। घोड़ा रेत से बाहर निकल आया। सुराका उस पर फिर से सवार हुआ और फिर हमला करना चाहा तो उसका घोड़ा फिर रेत में धंस गया। वह फिर उतरा और तीसरी बार भी उसने ऐसा ही किया तो उसका घोड़ा फिर रेत में धंस गया। अब उसके दिल में ख्याल आया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सच में अल्लाह के रसूल हैं। उसने उनके साथ दुश्मनी करना ठीक नहीं समझा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, इनामी ऐलान का हाल सुनाया, फिर लालच में पड़ने का हाल बताया। इसके बाद माफ़ी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। सुराका मक्का लौट आया। अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते उस रास्ते से गुजरता तो सुराका उसे वापस लौटा देता और कहता, उधर तलाश करना बेकार है, मैं तो उसी तरफ से आ रहा हूँ। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के रास्ते पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दामाद जुबैर मिले। जुबैर हज़रत आसमा के शौहर थे जो शाम की तरफ से तिजारत कर वापस आ रहे थे। उन्होंने आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अच्छे अच्छे कपड़े पेश किए। नबी ने इन कपड़ों को पसंद किया। कुछ दिनों बाद आप मदीना पहुँचे। मदीना के लोग नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आ जाने से बहुत खुश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अपने घरों में ठहराने के लिए आपसे गुजारिश करने लगे। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर में ठहरे क्योंकि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हज़रत अयूब अंसारी के दरवाज़े पर जाकर बैठ गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो सुख के मकाम पर हज़रत खारिजा रज़ी अल्लाह अन्हो के यहाँ ठहरे और कपड़े की तिजारत करने लगे। कुछ दिनों बाद उनके बेटे अब्दुल्लाह सबको लेकर मदीना आ गए। आपके वालिद अबू कुहाफा और एक बेटे अब्दुर रहमान जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, वह दोनों मक्का में ही रुक गए। मदीना आकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो और उनकी छोटी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों बीमार पड़ गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का में 9 साल के उम्र में ही हो गई थी। उन दोनों की बीमारी इतनी बढ़ गई कि कोई दवा काम न करती। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने नबी से दुआ के लिए कहा। इन दोनों के अलावा दूसरे लोग भी जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे वह सभी बीमार हो गए क्योंकि उस वक्त मदीना की आबो हवा अच्छी न थी। आप नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो मदीना की आबो हवा अच्छी हो गई और जो लोग बीमार पड़ गए थे वह अच्छे हो गए। मदीना
मदीना पहुंचकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली। मस्जिद नबवी के लिए एक जगह पसंद किया। यह जगह 2 यतीम बच्चों की थी और दोनों बच्चे मस्जिद नबवी के लिए इस ज़मीन को हदिये के तौर पर देना चाहते थे, मगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा से ज़्यादा दिरहम देकर वह ज़मीन खरीद ली। इस मस्जिद नबवी के लिए रकम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने पास से दी थी। आगे की बातें इंशाअल्लाह कल की वीडियो में करेंगे। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। हज़रत अबू बकर की बाकी की वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल पर आएँ और वहाँ आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।